स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. दैट टॉपिक इज केमिकल काइनेटिक्स. सी व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? Then the terms that is to be involved in the chemical kinetics, that is rate of reactions. Then we are going to discuss here that instantaneous rate of reactions, then order of reaction, molecularity of the reactions, the various terms. So the first we are going to discuss here what is the exact definition of the chemical kinetics. The chemical kinetics का मतलब क्या होगा? What is the kinetics? Kinetics that is related with the rate of reaction. अगर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर बात करें, इट इज द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज रेट्स एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच द रिएक्शन ऑकर्स. Rate of reaction, say that I am taking here that is the one of the hypothetical reaction A tends to B, where the A is the reactant and the B is the product, where the A is converted into the B, that the various factors that affects on the rate of reaction, see that is the temperature, pressure, catalyst, concentration, all these are the factors. Where all these are factors that is related with this, the rate of reaction that decides these factors. आपको पता है कि अगर मैं कैटलिस्ट का यूज अगर करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, isn't it? At the same time, say that whatever the temperature as well as the pressure, that these are the factors which affects also that rate of reactions. So basically when we are talking about the kinetics of the chemicals, that is the chemical reaction, काइनेटिक्स की अगर हम लोग अगर बात करें तो दैट वी आर कंसर्न विद से दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. देखिए एक रिएक्शंस की जब बात होती है तो दैट सी दैट इज द रिएक्शन हम लोगों ने एक ली, दैट इज द A टेंड्स टू B, where the A is the reactant while the B is the product. When the reaction occurs at that time, when the reactant converted into the product, जब reactant का कोई भी conversion जब product में होता है, इसका मतलब ये होगा the concentration of the reactant that will be decreases, at the same time the concentration of the product that will be increases. Rate of reaction क्या होगा भी? Rate of reaction का मतलब ये होगा it is the change in the concentration per unit time. It may be of reactant or it may be of product. चाहे वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो या तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो. सो दैट द वेरी सिंपल डेफिनेशन इज देयर दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग, इट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड टाइम. सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर मैं यहां पे मानता हूं कि डेल्टा सी इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, वेल द डेल्टा टी इज द चेंज इन द टेम्परेचर, दैट इज द टाइम. अगर वो टाइम का दैट इज गिवन टाइम, रिक्वायर्ड टाइम जो होगा दैट इज द डेल्टा टी. सो व्हाट इज द डेल्टा सी? सी का मतलब ही होगा C2 minus C1, because we are getting here that is the 2 initial concentration as well as the final concentration. So final concentration minus initial concentration, final time minus initial time, जो भी होगा that give that is the change in concentration per unit time, that is the rate of reaction. Clear? It's a very simple. अगर ये टर्म क्लियर अगर होती है तो दैट सी फॉर दिस अ केमिकल चेंज, अगर मैं ये केमिकल चेंज अगर बात करता हूं A टेंड्स टू B, तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा? नाउ सी दैट इज फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A के टर्म में जब A का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, दैट मींस दैट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन. देखिए आई पुट हियर दैट इज द स्क्वायर ब्रैकेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्क्वायर ब्रैकेट? That these are square bracket that indicates the concentration. जब भी कोई टर्म्स को, कोई भी रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट को हम लोग जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ही होगा दिस इज द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन. इट इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म. सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन. सो आई राइट हियर फॉर द A, अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एंड दैट्स व्हाई आई पुट हियर दैट इज द नेगेटिव साइन. आई पुट हियर दैट इज द नेगेटिव साइन माइनस डेल्टा change in the concentration, that is the inside the square bracket A is put up, बराबर है, divided by the delta T, where the delta T का मतलब होगा change in time, that is what the required time, correct? So minus change in concentration of A divided by delta T, at the same time for the B is the product. प्रोडक्ट अगर होगा तो concentration क्या होगा? बढ़ेगा. अगर concentration बढ़ता है तो that's it, plus sign is there. We put here that the plus sign that indicates the increase in the concentration. Minus sign indicates that is the decrease in the concentration. So these are the two terms.
नेगेटिव टर्म की बात अगर होती है, माइनस साइन की बात होती है, तो दैट इज द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन. सो प्लस change in concentration of B or the concentration of the B divided by delta T. बराबर समझ में आ रही है? So that it indicates the rate of reaction, that is first say that is the A by taking the term A as well as by taking the term B. अगर ये complete reactions की अगर बात अगर होती है तो उसका rate of reaction क्या होगा भाई? Now we can write here, मुझे पता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, एंड दैट्स व्हाई से दैट फॉर होल रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन dt. दिस इज द स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. डी का मतलब ये होगा इट इज द स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्लस small change in concentration of B upon dt. So this is the negative sign, this is the positive sign. So that it indicates the total, that say that is the rate of reaction for this chemical change. Clear? अगर मैं उसके यूनिट्स की अगर बात करूं, concentration की टर्म अगर होती है तो what is the concentration? Concentration is nothing, it is a moles per cubic decimeter divided by time का मतलब होगा divided by per second. So moles per cubic decimeter per second, this is what, so that is the unit. रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होगा मोल्स पर क्यूबिक डेसिमीटर पर सेकंड. गेटिंग दिस? समझ में आ रही है? सो दिस इज द वेरी सिंपल कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. नाउ वी कम ऑन से दैट इज द अनदर टर्म दैट इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर, दैट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. नाउ व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होगा इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट स्पेसिफिक इंस्टेंट. It is the rate of reaction at specific instant. एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करता हूं, that means that becomes that is the instantaneous rate of reaction. Clear? Now see, I am taking here that is the two graphical presentations, where these are two graphical presentations that indicate how the change in the concentration that is for the reactant as well as the change in concentration for the product that will carry. See? ये ग्राफ मैंने निकाला है. On this axis that we have been taken the change concentration term, this is the concentration of A. अगर ये reactant side का ग्राफ अगर होता है तो ये product side का ग्राफ होगा. Say that this is the concentration and this is the time. बराबर है? Concentration versus time. Now we are getting this curve. आप देखिए ये कर्व आपको मिलती है. That this is a curve that indicates, say at this point concentration ज्यादा है. जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया. As the time increases, the concentration decreases. As the time increases, the concentration decreases. That means that once the reaction that proceeds, जैसे जैसे टाइम जाते जाएगा वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाएगा. This is for that is the reactant. मैंने आपको पहले ही बोला कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होने जा रहा है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने जा रहा है. On the contrary, that is the another curve. फिर से वही कर्व आती है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम. यहां पे अगर आप देखें तो से दैट इज द एज द टाइम चेंजेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ते जाएगा. से दैट दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म. यहां से यहां पे गया, फिर यहां से यहां पे, दैट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट विल बी इंक्रीजेस ओवर हियर. सो दिस इज द वेरी सिंपल ग्राफ दैट इंडिकेट्स हाउ द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज देयर. रिएक्टेंट की साइड की अगर बात अगर होती है तो दैट से there will be a decrease in the concentration. On the contrary, say that when we are talking about the product side, say that the concentration of the product that will be increases over here. Clear? समझ में आ रही है? Now we come on to that is the one hypothetical reaction. एक रिएक्शन मैं आपके सामने रखता हूं जहां पे सारे के सारे जिसके कोएफिशिएंट्स और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसको कहा जाता है, all these are the stoichiometric figures. Where say that these are components, हर एक ए, बी और सी तीनों के कंपोनेंट्स अलग अलग है. ए का एक मॉलिक्यूल, बी का 3 मॉलिक्यूल, सी के 2 मॉलिक्यूल. When the one molecule of A that reacts with the 2 molecules of the 3 molecules of the B, that will give that the 2 molecules of the C. Clear? All the stoichiometric coefficients are different. Components अलग अलग है. अब अगर ये रिएक्शन अगर होती है तो रेट ऑफ रिएक्शंस की अगर हम लोग अगर बात करें, isn't it? If I talk about so that the rate of reaction, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाए?
इसका एक फॉर्मेट है, जैसे कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपके सामने है, ये वाली रिएक्शन, where we have been taken small a capital A plus small b capital B that give the small c capital C plus small d capital D, all the small letters that become the stoichiometric coefficients. उसका एक जनरल फॉर्मेट होता है कि when we write here that is the any sort of rate of reaction, अगर मुझे rate of reaction लिखना है तो rate of reaction कैसे लिखा जाएगा? See, for this these are the reactants and these are the products. A as well as the B, these are the reactants, and the C as well as the D, these are the products. फिर इसको लिखने का तरीका होता है कि वॉट एवर द कोएफिशिएंट्स आर देयर, आप लिखते वक्त ये रिएक्टेंट साइड होती है करके माइनस, जो भी कोएफिशिएंट होगा 1/A होगा, ये होगा 1/B, ये होगा 1/C और ये होगा 1/D. अगर रिएक्टेंट की साइड अगर होता है तो वहां पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा करके नेगेटिव साइन पुट अप करना पड़ेगा. सो आई पुट हियर दैट इज द नेगेटिव साइन. और वो प्रोडक्ट साइड होती है करके वहां पे हम लोगों को क्या करना है, प्लस साइन इंडिकेट करना है. सो दैट्स सी दैट इज द प्लस साइन ओवर हियर. करेक्ट. अब ये इसका ओवरऑल अगर ये रिएक्शन अगर होती है तो ये रिएक्शन को मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखता हूं? हाउ विल आई राइट द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन? इसका रेट कैसे होगा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमको लिखना है. नाउ सी, कोएफिशिएंट की बात अगर करें तो यहां पे एक है. सो 1/A होगा तो 1/A तो 1 ही होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है करके हम लोगों ने क्या लिखा, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt बराबर है इज इक्वल्स टू 1/3. रिएक्टेंट साइड होती है करके नेगेटिव साइड, therefore -1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt बराबर इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट साइड में आइए 1/2 बराबर है. ये हमारा फॉर्मेट है, ये जनरल फॉर्मेट. सो देयरफॉर से दैट दिस कोएफिशिएंट हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/2. बट से व्हाट साइन दैट वी आर गोइंग टू पुट, पॉजिटिव, बिकॉज़ दिस इज द प्रोडक्ट साइड. दैट मींस द कंसंट्रेशन दैट विल बी इंक्रीजेस ओवर हियर. क्लियर? समझ में आ रही है? देयरफॉर आई राइट हियर. तो ये इक्वेशन के लिए अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है तो दैट सी दैट दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन. minus dA upon dt is equals to minus 1/3 dB upon dt is equals to plus 1/2 dC upon dt. Clear? Getting this concept? So these are the very simple concept. ये छोटी सी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, ये पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा. So this is the very simple that what is the chemical kinetics, definition of the chemical kinetics. This is nothing, it is a rate of chemical reaction, it is a study of the rate of chemical reactions, the factors affecting these rates and the mechanism by which the reaction occurs. बराबर है. Then rate of chemical reactions के लिए हम लोगों ने rate की बात की तो what is the rate? It is the change in concentration per unit time. Change in concentration अगर होता है तो reactant का concentration कम होता है, product का concentration बढ़ता है. reactant का concentration कम होता है, product का concentration बढ़ता है करके ये reactions को हम लोगों ने इस तरीके से उसका rate of reaction लिखा. Then we have been taken that what is the SI unit. अगर वो change in concentration के terms किस में हम लोग में, moles per cubic decimeter. So moles per cubic decimeter divided by time. Time का मतलब second. Time is to be measured in the second. Therefore moles per cubic decimeter per second. That is what the unit. Correct? Graphical presentation at the same time say that what is the instantaneous rate reaction. Where these instantaneous rate reaction का मतलब होगा it is the rate of reaction at specific instant. At a specific instant, that is known as the instantaneous rate. Clear? Where एक ऐसी रिएक्शन हम लोगों ने चूज की कि जहां पे उसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं वो अलग अलग है. उसका मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है तो उसका एक जनरल फॉर्मेट होता है. वो जनरल फॉर्मेट के मुताबिक अगर हम लोग अगर जाए, ये ऑल दीज आर द कैलकुलेटेड पार्ट, नो डाउट कैलकुलेटेड पार्ट होता है. यानी इसका मतलब होगा कि जब ए का कंजम्पशन होगा, बराबर है, ए का कंजम्पशन होता है, ए का जब when the A is consumed the 3 times B, यानी 1A when reacts with the 3B, यानी B का कंजम्पशन जो होगा वो 3 times greater than the A होगा. It is the 3 times greater than the A. ये कंसेप्ट है. It is equals to 2 times it is greater than the A.
इट इज द कंजम्पशन, इट इज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, बराबर है। अगर वो कैलकुलेटेड पार्ट को अगर मैं डायरेक्टली अगर लिखूं तो ये फॉर्मेट में उसका आंसर आता है, ये फॉर्मेट में हम लोगों को उसको लिखना पड़ेगा, isn't it? That's why this is a very simple format. ये फॉर्मेट पहले समझ लो, जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको 1 by a, 1 by b, 1 by c ऐसा लिखिए, वो फॉर्मेट बराबर आएगा। उसी तरीके से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इंडिकेट कर सके। एंड देयरफॉर फॉर दिस रिएक्शन दैट हैव बीन टेकन हियर, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू माइनस 1/3 dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/2 dc अपॉन dt। सो दिस इज व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, समझ में आ रही है?